Welcome back Victor family. I am Ayan Shukla, your IT faculty. आज हम बात करने वाले CSS के बारे में. CSS is Cascading Style Sheets. Now CSS का काम क्या है? अब हमारा पहला चैप्टर ही एडवांस वेब डिजाइनिंग. तो डिजाइनिंग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डिजाइन में लोग क्या देखते हैं? देखते हैं कि ड्रेस कैसी है, कलर कैसा है, मॉडल कैसी है, जैसे फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड बॉक्स हो गया, दैट टाइप ऑफ मॉडल गाइस. Don't take it wrong. So those are the important aspects of designing. अभी आप इसको कोड में कैसे करोगे? So to change the color, the font or the design, the entire design language of a web page, we use CSS, that is Cascading Style Sheets. Now आपको काफी सारी चीजें पता चलने वाली है. Let's hop on to the whiteboard. Alright, so as we discussed, today our topic will be Cascading Style Sheets, which is CSS. So following the topic of HTML and CSS, further we'll run JavaScript. हमारा ये पूरा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, which is Advanced Web Designing. Now web designing की जब बात आती है, डिजाइन का सबसे बेस्ट एलिमेंट क्या होता है? The colors, the shape, and designing overall in general. Now for that, we'll need CSS, that is our Cascading Style Sheet. First, let's discuss the basic syntax of CSS. तो इसका basic syntax क्या है? HTML के अंदर हम लोग जो tag use करेंगे, that will come here. उसके बाद उसका एक attribute रहेगा, and then we'll put the value of it. Now, in this tag name, we can actually use either the ID name of the same tag or the class name of the same tag, so that we can actually group things. और एक particular group को हम लोग एक specific design value या attributes दे सकते हैं. All right. Alright guys, now let's look at the attributes of CSS. सारे attributes हम लोग नहीं पढ़ेंगे, but we'll discuss on the major ones. And बाकी के जितने भी हैं ना, हम लोग उसे practical में देखेंगे. Practical in the sense not I'll come at your place and teach you, but practical as in when we'll sit on the PC and हम लोग जब इसका coding वगैरह check करेंगे, then we'll see the other attributes. Alright, so let's see this first. पहला हमारे पास क्या होता है? Width. What is width? Width मतलब उसका जितना dimension में रहेगा. अभी x axis उसका जितना width रहेगा. So as the name suggests, this is the width. Similarly, we also have height. जब हम लोग एक particular section का width और height decide करते हैं for maybe a card view or something, that's the width attribute as well as height attribute. Margins. Now imagine this. Margin and padding, they go both hand in hand. So margin is something जो अंदर से बाहर की तरफ push कर रहा है. अब ये जो है, if this area is pushing from inside to outside, this is the margin. Whereas padding is उसके बीच का padding, जैसा आपने देखा रहेगा when you have a couch or something, उसको दीवार पे टच होने बचाने से हम लोग क्या करते हैं? We use padding for that. So it's something जो walls से रहता है to avoid it leaving those marks. So that is padding. Similarly, we have few elements जो हम लोग वापस practical में discuss कर लेंगे. Then we have color, as the name suggests. Color है. बस you might notice the spelling की COLOR है, COLOUR नहीं है because we follow American English here. Yes, and no Britishes anymore. Then we have background. Background decides either the background color or the background image as we program it to be. Background is that. Then we have font family. Font family अभी आपने कभी बचपन में MS Word वगैरह यूज किया रहेगा. You know, a lot of fonts are available. Algerian होता है, Sans होता है. There are a lot of fonts, but यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑप्शन तो है नहीं कि ड्रॉप डाउन क्लिक किया सारे फॉन्ट्स आ गए देन वी सिलेक्टेड. नो, वी हैव टू इंपोर्ट फॉन्ट फाइल्स फ्रॉम द वेब एंड वी हैव टू असाइन इट कि बाबा फॉर दिस वेब पेज और फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू नीड टू यूज दिस टाइप ऑफ फॉन्ट ओनली. देन वी हैव फ्लेक्सबॉक्स. फ्लेक्सबॉक्स इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ CSS जो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखता है. इसका थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ रिमेंबर इट्स वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स. इट्स अ डिस्प्ले टाइप एट्रीब्यूट. देन वी हैव लेटर स्पेसिंग, एज द नेम सजेस्ट. अभी यहाँ पर देखो लेटर स्पेसिंग अच्छा खासा है, whereas यहाँ पे काफी क्लोज है. दिस इज टाइटली पैक्ड एंड दिस इज वेरी लूजली ओपन. तो ये है हमारा लेटर स्पेसिंग. एंड देन वी हैव द बॉर्डर रेडियस. बॉर्डर रेडियस इज नथिंग बट वो जैसे मस्त एस्थेटिक सा कर्व्स देखते हो ना, वैसे एजेस वगैरह पे कार्ड व्यू वगैरह के. अभी यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, बट इसका देखो रेडियस नहीं है. दिस इज लाइक प्रॉपर शार्प 90 डिग्री. बट इफ आई वांट टू लुक ऐसा मस्त प्लीजिंग वे में, आई गिव अ बॉर्डर रेडियस ऑफ लेट्स से 5 पिक्सल और समथिंग. सो एकदम हल्का सा कर्व दे देगा, नॉट इन अ नॉटी मैनर बट इन अ प्रेटी मैनर. ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द प्रैक्टिकल नाउ.
ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग CSS का देखेंगे प्रैक्टिकल में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने VS कोड कैसे इंस्टॉल किया, गूगल क्रोम कैसे इंस्टॉल किया। आई टेल यू व्हाई वी इंस्टॉल्ड गूगल क्रोम टू, दैट जब भी आप आपके वेब पेजेस चेक करना चाहोगे तो यू कैन सी इट साइड बाय साइड। ऑलराइट, सो फर्स्टली VS कोड के अंदर हम लोग आ गए। यू विल बी ग्रीटेड विद दिस वेलकम स्क्रीन। I've created a CSS का लेक्चर फाइल। तो पहले हम लोग दो फाइल बनाएंगे। फर्स्ट विल बी आवर index डॉट HTML। नाउ आप CSS के जो है ना, देर आर थ्री डिफरेंट वेज टू इंटीग्रेट CSS का स्टाइलिंग विद इन योर HTML फाइल। पहला आप एम्बेड कर सकते हो विद इन द कोड। सेकेंड इज आप वो टैग के अंदर उसका स्टाइलिंग डाल सकते हो। एंड थर्ड, द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड बाय मी एज वेल एज अ लॉट ऑफ पीपल इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट स्टाइल शीट वाला फाइल और उसको आपको लिंक करना। तो आप जैसे ही VS कोड के अंदर अगर सिर्फ एक्सक्लेमेशन दबा के एंटर दबाते हो, यू विल गेट दिस टाइप अ ब्रॉयलर प्लेट। यहाँ पर आपका हेडिंग वगैरह सब अपने आप आ जाएगा। टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट आ गया है, देयर इज द बॉडी है। बॉडी के अंदर हम लोग एक लेट्स से पैराग्राफ टैग हम लोग डाल देंगे और उसके अंदर हम लोग लॉरम करके ये कर देंगे। सो हमारे पास एक रैंडम टेक्स्ट आ गया है। इफ यू वांट टू सी दैट, जस्ट हिट द गो लाइव बटन एंड आपको ये दिख जाएगा। सो यू विल बी ग्रीटेड विद दिस। हम लोग इसके अंदर थोड़े और एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। लेट्स ऐड एन ईच वन टैग टू, एंड हम लोग इसका डालेंगे हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन बिकॉज इट लुक्स प्रीटी। सो जब आप यहाँ पर आओगे आपको दिखेगा। तो मैं इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देता हूँ एंड देयर वी हैव इट। हमारे अभी हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे, वेदर इट बी, मैंने वर्ड की जगह हेलो एवरीवन लिख दिया, आई जस्ट हिट द सेव बटन, तो वहाँ पर अपने आप यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। सो दिस इज लाइव सर्वर जो आपका डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता रहेगा। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू इंस्टॉल VS कोड एज वेल एज गूगल क्रोम, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन बेटर है। सो यहाँ पर होने के बाद विल गो ऑन आवर एक्सप्लोरर, विल क्रिएट अ न्यू फाइल विच इज styles.css। सो हमने एक स्टाइल शीट का हमने एक बनाया styles.css एंड देन हम लोग उसको अपने HTML से लिंक करेंगे। सो पहले हम लोग लिंक टैग ओपन करेंगे, उसका रिलेशन पहले हम लोग बताएंगे। द रिलेशन ऑफ द CSS फाइल इज स्टाइल शीट एंड देन हम लोग उसका href डालेंगे, दैट इज हाइपर रेफरेंस। उसका हाइपर रेफरेंस क्या है, styles.css। ऑलराइट, सो वी कैन सेव इट हियर। लिंक भी क्लोज कर देते हैं। सो वंस वी रन इट, सेव करने के बाद there we have it। अभी हम लोग हमारे styles.css में जाएंगे एंड सिंस हमें अगर समझते हैं हमें पूरा बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम लोग HTML टैग ओपन करेंगे, क्योंकि हम लोग को पूरा HTML का बैकग्राउंड चेंज करना है। लेट्स टैप ऑन बैकग्राउंड कलर। हम लोग लेट्स से वी गिव इट द कलर रेड, सो दैट इज F double O। Once we save it we can see it's red। or what else you can change, let's say you want to give it a margin of 25 pixels। तो आप देख रहे रहोगे कि मार्जिन ने इसको अंदर से बाहर की तरफ पुश किया। सो ये जो एच था इसने उसको पुश किया है, सो इट मूव्ड आउट। सो दिस इज द मार्जिन। ये 25 मार्जिन आ गया इसका। एंड इफ वी पुट द एंटायर थिंग इन अ कंटेनर, लेट्स से कि ये डिवीजन का पार्ट है, हमने इसे एक डिवीजन में डाला एंड सिर्फ इतने डिवीजन को हमने वो दिया। सो यू कैन सी कि वो पूरे डिवीजन को वो एक आइसोलेट कर देगा। इट विल बिकम, अभी आप देख सकते हो कि ये जो हेलो वगैरह है, हेलो एवरीवन, एंड दिस इज पुश्ड आउट।
बट ये रेड वाला एकदम एज टू एज है, सो हम लोग को पैडिंग देना पड़ेगा. पैडिंग विल गिव 10 पिक्सल्स. सो वो अंदर से एक उसको पैडिंग मिल गया, तो जो बॉर्डर था डिवीजन का उसका पैडिंग मिल गया, राइट. नाउ वी कैन गिव द border radius as let's say 25 pixel itself. तो अब वो काफी कर्व हो गया है, काफी अच्छा दिख रहा है, राइट. So this is how you can actually toy around with CSS. Now to learn more in depth कि CSS के अलग अलग टाइप्स क्या है, there are flex box, grid box, rows columns के अंदर काफी हम लोग खेल सकते हैं. To learn more on that, we will discuss it in the next lecture. All right, thank you.